dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today in this video, we will read some basic introduction on chemical changes and reaction. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Chemical changes and reaction. Whenever energy is added to or removed from matter, the matter is said to have undergone a change. So almost all the changes which takes place in the matter, they can be classified into two categories. That is physical change and chemical change. So here we are going to read about chemical change and reaction because physical change is not in our course. So let's see what is a chemical change. केमिकल चेंज तो सबको पता है कि एक ऐसा चेंज होता है विच इज़ इरिवर्सिबल, विच इज़ परमानेंट, एंड हियर द ओरिजिनल सब्सटेंस जो हम रिएक्टेंट लेंगे इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी, इट्स कॉम्पोजिशन, एंड इट विल गिव राइज टू न्यू सब्सटेंस, एंड दैट न्यू सब्सटेंस विल हैव different composition as well as property. So a chemical change is a permanent change. That is the one in which original substance lose its composition and properties and they give rise to one or more new substance with different composition and properties. So there are many examples like rusting of iron हम लोग पढ़ सकते हैं, and हम लोग ripening of fruit, clotting of blood, burning of wood, burning of coal, मेकिंग ऑफ वाइन, डाइजेशन ऑफ फूड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि केमिकल रहते हैं, मीन्स केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है. क्यों केमिकल चेंज किए होंगे? बिकॉज जब ये सब चीज़ें जब ये सब चेंजेस जब आता है देन एट दैट टाइम वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट. सो हियर आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. सोच लो हमारे पास एक आयरन है एंड इफ दैट आयरन इज लेफ्ट आउट इन मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर मीन्स एयर जहाँ पर वाटर वेपर का लेवल ज़्यादा होगा, एंड एयर में ऑक्सीजन तो रहता ही है. सो रस्टिंग के लिए टू कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट, एक होता है ऑक्सीजन एंड दूसरा होता है मॉइस्चर. सो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट आउट इन अ मॉइस्ट एयर इट स्लोली चेंजेस इनटू अ ब्रिटल डल ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड आयरन रस्ट. वो एकदम धीरे धीरे क्या हो जाता है, आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट आयरन रस्ट इज नॉट जस्ट आयरन, that is totally different from iron. वो होता है hydrated iron oxide and that is a new substance. Its properties, अगर हम लोग उसका property को iron के साथ match करेंगे then we will find that its property is totally different from iron. So this is an example of chemical change. अगर एक iron में rust लग जाता है तो that is a chemical change. हम लोग उस rusted iron से original iron में फिर convert नहीं कर सकते हैं. So here I have written some difference between iron and hydrated iron oxide. Iron they are usually grey and hard solid, but hydrated iron oxide वो लोग dull brown brittle substance होते हैं. ये लोग hard होते हैं but they are brittle. Brittle means they are not hard. उनको अगर हम लोग hammer से बीच करेंगे तो वो एकदम pieces में break हो जाएंगे. But iron वो तो एक sheet में convert हो जाएगा due to its malleable property. Second is iron they are normally good conductor of electricity. लेकिन what about iron oxide? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सोचो आयरन से जब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना तो एक टोटली न्यू सब्सटेंस बना है. सो दिस इंडिकेट्स दैट इट इज अ केमिकल चेंज. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. सो देयर आर हियर आई हैव रिटन मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज in chemical change we get new substance. So one or more new substances are formed. Like if I have sugar here, I have taken this sugar and if this sugar will be heated very strongly in a test tube then what will happen? First it will melt, then वो थोड़ा brownish color का होगा, then we will continue heating it and at last we will find that it gets converted into a black mass of carbon. ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक मास ऑफ कार्बन. सो वी गेट कार्बन एज वेल एज H2O इन वेपर फॉर्म. सो इफ वी विल थिंक कि कार्बन और वेपर को कंबाइन करके हम लोग अगर फिर से शुगर कन्वर्ट कर लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड इज दे आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. ये चेंज अगर एक बार हो गया तो हो गया एंड दे आर इरिवर्सिबल. थर्ड वन इज एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट. ये हमेशा होता है केमिकल चेंज में. कभी भी अगर केमिकल चेंज होता है तो एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब होता है या फिर वो रिलीज होता है. कैसे होता है देखो, मेनली
एक मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स लोग मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स लोग जब वहाँ पर कंबाइन होते हैं तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स को होल्ड करके रखता है स्ट्रांगली। सो वही होता है केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये एक तो करेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर आई हैव रिटन वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, या दिस 2 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। इफ हमारे पास एक कंपाउंड है देन ऑब्वियसली उस कंपाउंड के अंदर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो भी हैं प्रेजेंट है एंड उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो अगर मुझे वहाँ पर उस बॉन्ड को तोड़ना है सो आई हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दैट कंपाउंड, सो दैट कंपाउंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड फिर वो टूटता है। So energy is absorbed to break bonds. So bond breaking is an endothermic process. This is very important. Bond breaking endothermic process होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर they absorb energy. Second, energy is released when new bonds form. अगर new bonds form हो रहा है so उस समय energy वो लोग release कर देते हैं। So bond making is an exothermic process. Now conditions for chemical change. So students, for the occurrence of any reaction, mainly the molecules or atoms which are present in that reactant, they have to collide with each other. उनको एक दूसरे के साथ इसे collide करना पड़ता है। So in or why do they need to collide? क्यों collide करना पड़ेगा? अगर collide नहीं करेंगे तो जो नया bond होगा वो कैसे बनेगा और पुराना bond कैसे टूटेगा? So to break old bonds and to form new bonds, there must be collision between the atoms which are present in the reactant. So अब ये collision को हम किस तरीके से करवाएंगे? So this collision occur when reactants are in close contact or by supply of energy. 2 कंडीशन है जिससे हम लोग ये collision करवा सकते हैं। पहला, उनको हम क्लोज कॉन्टैक्ट में ले आएंगे। अगर हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में ले आएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल होगा। एंड सेकेंड इज बाय सप्लाइंग एनर्जी। So one by one we will see some conditions. So first I have mixing in close contact. So there are some chemical reactions which are possible when 2 reactants or 2 substances are mixed in their solid state. Solid state में mix करने से ही वहाँ पर reaction possible होता है। Example, I am having zinc and iodine. Zinc को लेते हैं solid form में and iodine को लेते हैं, इसको भी solid form में लेंगे और इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। सो वो करते ही क्या होता है, दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट और ऑलरेडी उनको मिक्स करने से क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं एंड वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसी का एक और एग्जाम्पल देखूँ, सो आयोडीन एंड फॉस्फोरस, आई हैव नॉट रिटन हियर बट आयोडीन एंड फॉस्फोरस, उनको भी जब हम लोग मिक्स करते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट सो वो लोग भी रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोजिवली and they give us new products. Then second one is heat. Heat is also a very important factor. So there are some reactions, some chemical reactions which are possible only by heating them. Like here I have lead nitrate. So lead nitrate का तो reaction काफ़ी बच्चे लोग लैब में देखे होंगे। lead nitrate को mainly ये white color का solid होता है salt, इसको test tube में लिया जाता है and then it is heated strongly. इसको हीट करने से व्हाट हैपन्स, इट देर इज अ व्हाट क्रैकलिंग साउंड होता है वहाँ पर एंड लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू गिव 3 थिंग्स, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अगर हम लोग इसको हीट नहीं करेंगे सो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सो ये जो रिएक्शन है दिस इज पॉसिबल ओनली बाय हीटिंग दिस सब्सटेंस। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर दिख रहा है इट इज़ हैविंग रेडिश ब्राउन कलर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो इट्स बेटर आप लोग इसको याद रखना, इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन। लाइक ये केमिकल इक्वेशन दे देगा एंड यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट निकल रहा है जिसका कलर है रेडिश ब्राउन, सो उसका नाम बताओ। सो बस आप लोगों को तो यहाँ पढ़े हो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज दैट गैस विच इज़ हैविंग रेडिश ब्राउन कलर, तो बस उसी को लिखना है। Then the third condition, light. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में तो सुने होंगे,
सो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं विच आर पॉसिबल. वो कब पॉसिबल होंगे? जब वहाँ उनको लाइट मिलेगा. अगर लाइट नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल. सो the reactions which takes place by the action of light, they are called what? Photochemical reactions. So the best example is photosynthesis. photosynthesis में क्या होता है? जो पेड़ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, लाइट के आते ही, सनलाइट के आते ही दे स्टार्ट मेकिंग फूड. सो डार्क में तो फोटोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए फोटोसिंथेसिस मेनली डे टाइम में होता है. तो यहाँ पर ये इनिशिएट होता है बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वहाँ पर रिएक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है. सो हियर आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. 6 CO2 plus 6 H2O, and they are reacting in the presence of light. We are getting glucose as well as oxygen gas. Then electricity. There are also some chemical reactions which are possible only when electricity is passed through that substance. Best example is electrolysis of water. If we need to do electrolysis of water, what we have to do? We have to take acidulated water. That means water में थोड़ा acid डाला जाएगा, H2SO4. And then electricity is passed through them. Then what happens? वो water dissociate हो जाता है and we get hydrogen gas as well as oxygen gas. So electrolysis means here electricity is needed. Now, fifth condition is pressure. So there are some chemical changes which takes place when the substances are subjected to very high pressure. If हम लोग रिएक्टेंट्स में हाई प्रेशर नहीं डालेंगे सो वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. व्हेन वी मिक्स दैम टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, सो एट दैट टाइम प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर वहाँ पर हम लोग हाई प्रेशर नहीं डालेंगे सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वोंट रिएक्ट टू गिव अमोनिया. And here I have written that they react in the presence of iron as a catalyst. So this is also very important. Then number 6 is solution. So some chemical changes occur when substances are mixed in solution form. Like here I have taken NaCl and AgNO3. This NaCl is a common salt, sodium chloride. So I need to mix them for reaction. So इनको react करवाना है. यहाँ पर अगर मैं इनको solid form में ले लूँगी so यहाँ पर reaction not possible. So यहाँ पर we will take them in aqueous form. I have written here AQ. AQ means this is the solution of NaCl where I have used water as solvent. Aqueous का मतलब होता है यहाँ पर water को लिया जाता है as solvent. You note it down. Then दोनों को solution form में mix किया गया तो वहाँ पर reaction देखने को मिला. अगर solution form में नहीं लेते तो reaction possible नहीं होता. Then number 7, catalyst. So catalysts are the substance which can alter the rate of a chemical reaction. They can either increase or decrease the rate of any chemical reaction. So very important thing to be noted about catalyst is that catalysts themselves do not take part in reaction. वो लोग सिर्फ वहाँ पर जो उनको काम के लिए दिया जाता है लाइक इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना द केमिकल रिएक्शन, वो लोग वही काम करते हैं एंड वो लोग खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सो हियर आई हैव रिटन वन एग्जांपल. दिस इज पोटेशियम क्लोराइड. इसको स्ट्रांगली हम लोग यहाँ पर हीट करेंगे. हीट करने से वी विल फाइंड दैट एट 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर ये रिएक्शन स्टार्ट होगा एंड वी विल गेट KCl एंड 3 ऑक्सीजन गैस. बट ये तो बहुत टाइम ले रहा था, इसलिए क्या किए, देयर वी एडेड दिस कैटलिस्ट. दिस MnO2 इज मैंगनीज डाइऑक्साइड. मैंगनीज डाइऑक्साइड. हियर जब देखा गया कि कैटलिस्ट को हम लोग ऐड किए उस समय ये रिएक्शन 300 डिग्री में स्टार्ट हो गया. दैट मीन्स व्हाट, पहले हो रहा था इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 700 डिग्री सेल्सियस में, बट एज सुन एज हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट ऐड किए ये रिएक्शन और जल्दी स्टार्ट हो गया. सो हियर दिस कैटलिस्ट इज इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन. सो कैटलिस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल है. लाइक बहुत जगह में आयरन यूज़ होता है, प्लैटिनम यूज़ होता है, यहाँ पर हम लोग MnO2 पढ़ लिए, निकल यूज़ होता है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट.
Catalysts are divided into two categories, positive catalyst and negative catalyst. So first we will see what is a positive catalyst. So positive catalyst means, positive का नाम सुन के लग रहा होगा ना कि ये कुछ अच्छा ही करेगा. So yes, positive catalyst they increases or accelerates the rate of reaction. If कोई catalyst है जो कि reaction का speed को बढ़ा रहा है, then that catalyst is known as a positive catalyst. So here again the same example जो हम लोग यहाँ पढ़े थे, manganese dioxide. So यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रहा था and it was giving us water as well as oxygen gas. But मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड करने से ये रिएक्शन काफ़ी स्पीड हो गया. सो हियर दिस इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. अभी अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं तो प्रमोटर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. सो देयर आर सम सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट. वो कैटलिस्ट का काम करने का तरीका को बढ़ा देते हैं, उसका एफिशिएंसी को वो इम्प्रूव कर देते हैं. सो इफ देयर आर सम सब्सटेंस which influences the rate of a chemical reaction by improving the efficiency of catalyst, means catalyst जो काम कर रहा था, अगर catalyst कोई रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा रहा है, सो प्रमोटर क्या करेगा, कैटलिस्ट को और बढ़ावा देगा, उसको वो मोटिवेट करेगा कि येस यू कैन डू वेल, तुम और अच्छे से करो. तो कैटलिस्ट अपना काम और अच्छे से करेगा. तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर. सो हियर देयर इज एन इक्वेशन, nitrogen is reacting with hydrogen and we are getting ammonia. Now ऊपर में I have written iron. So here iron is acting as a catalyst. But I also have molybdenum. This molybdenum is increasing the efficiency of this iron. Molybdenum एक iron एक catalyst है, molybdenum एक promoter है. So molybdenum act करने से iron अपना काम और अच्छे से कर रहा है. So here iron is acting as a catalyst, but molybdenum is acting as a promoter. जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, सिमिलरली नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है. सो नेगेटिव कैटलिस्ट मीन्स व्हाट, इट इज द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट. इफ पॉजिटिव कैटलिस्ट अपना स्पीड को मीन्स रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा रहा था, सो नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को कम करेगा. सो इन केस अ कैटलिस्ट रिटार्ड्स अ रिएक्शन, रिटार्ड्स मतलब उसका स्पीड को कम करना, then that is called a negative catalyst. So we are having two examples. These are very easy: phosphoric acid and alcohol. So this phosphoric acid and alcohol, they are responsible for decreasing the rate of a chemical reaction. So phosphoric acid retards the rate of decomposition of hydrogen peroxide. इससे पहले जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जाम्पल पढ़े थे, सो वहाँ पर लाइक यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर we were adding manganese dioxide. So it was increasing the rate of decomposition of this hydrogen peroxide. But in place of this manganese dioxide, if we will add phosphoric acid, so उसका जो rate of decomposition है उसका speed कम हो जाएगा. Then alcohol. Alcohol is also a negative catalyst. It decreases the rate of decomposition of chloroform. So that's all for today. In case of any doubt, do ask me in the comment section. I will clear all your doubts. Till then, if you have not subscribed to my channel, do subscribe it, share it and like all my videos. Thank you.